فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور تم پر دسترخوان کو اتاروں گا۔ فمن یکفر بعد منکم، پس تم میں سے اس کے بعد کوئی ناشکری کرے، فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا، لا أعذبه أحدا من العالمین، کہ جہاں والوں میں سے کسی کو اس کا عذاب نہیں دوں گا، یعنی ایسا عذاب دوں گا۔ بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کی اس بات کو سن کر کہ اپنے حواریین نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم سب کو آسمان سے دسترخوان اتارے اور ہم اس میں سے کھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، ایسی چیزیں مطالبہ مت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، فاقے سے ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتارے گا تو ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوگا اور آپ کے رسول ہونے میں اور زیادہ یقین ہوگا، تو ہم گواہی دینے والے بھی بن جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتوں کو سن کر اپنے عبادت گاہ میں تشریف لے گئے اور جو جھبا پہنے ہوئے تھے اس کو نکال دیا اور کالا جھبا پہن کر ایک کمبل اوڑھ کر سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا، غسل کیا اور نماز پڑھی اور قبلے کی طرف رخ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی۔ روتے رہے یہاں تک کہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ کیسے دسترخوان آئے گا۔ تو آسمانوں میں دسترخوان اترنے لگا، اس دسترخوان کے اوپر ایک ابر کا ٹکڑا تھا، اس کے نیچے ایک ابر کا ٹکڑا تھا، وہ دھیرے دھیرے زمین کی طرف آنے لگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح دعا میں مشغول رہے، روتے رہے، ان کی داڑھی مبارک تر ہوتی گئی۔ جب نیچے آ کر ٹک گیا لوگوں کے سامنے دسترخوان تو سارے لوگ خوش ہو گئے کہ بھئی آسمان سے دسترخوان آ گیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اس دسترخوان کو نکال کر کہ اس کے اندر کیا چیز ہے دیکھنے کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعا میں مشغول تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت سے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ نیک آدمی ہے وہ آدمی اس دسترخوان کو کھولے۔ حواریین کا سردار جس کا نام تھا شمعون، اس نے کہا کہ آپ ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں، ہم میں سب سے زیادہ آپ ہی اللہ سے زیادہ تعلق ہے، آپ ہی کو سب سے زیادہ اللہ سے دوستی ہے، لہٰذا آپ ہی شروع کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر وضو کیے، پھر نماز پڑھے اور اللہ سے دیر تک دعا کرتے رہے، روتے رہے کہ اللہ اس رزق کو میری امت کے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنائیے بلکہ اس کو رزق بنا دیے، اس کو رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان کو اٹھایا تو اس کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی رکھی ہوئی تھی اور بغیر کانٹے کے، کوئی کانٹا نہیں تھا، اور اس مچھلی کے اطراف میں بہت ساری ترکاریاں رکھی ہوئی تھی، قسم قسم کی ترکاریاں، اور اس مچھلی میں سے یعنی تیل جھڑ رہا تھا اور 5 روٹیاں اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تو اس 5 دوسری روایت کے اعتبار سے ایک روٹی پر شہد لگا ہوا تھا، ایک روٹی پر گھی لگا ہوا تھا، ایک روٹی پر پنیر لگا ہوا تھا، ایک روٹی پر گوشت لگا ہوا تھا، اس طرح الگ الگ یعنی روٹیوں پر الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اعتبار سے اس مچھلی اور روٹیوں کے ساتھ کچھ انار بھی تھے، کھجوریں بھی تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو بالکل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دسترخوان دیا ہے یہ انسانوں کے فائدے کے لیے،
आज भी जो जितनी चीजें हैं, शहद लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। शहद के फायदे इतने ज्यादा हैं कि बंदा अगर कोई महीने में 3 मरतबा शहद को चाट लेता है, शहद को खा लेता है, अल्लाह उस शहद की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत फरमाएंगे। शहद के अंदर ऐसी अल्लाह ने शफा रखी है। और इसी तरह घी वगैरह ये सब इंसानों के फायदे के लिए हैं। आजकल डॉक्टर से डरा दिए कि भाई घी खाना नहीं, चिकनी चीजें खाना नहीं, ये सब आकर क्या तुम्हारा अंदर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन वो तेल जो बिल्कुल केमिकल मिले हुए हैं, जितने भी तेल बनाते हैं ना, जितने भी सनफ्लावर हो वगैरह, ये सब के सब आकर के केमिकल से ज्यादा तैयार होता है। तो उसके यानी उसके बारे में ऐसी फजीलतें बयान की गई कि ये ऐसा है, ये फैट नहीं जमता। हालांकि 100 बीमारियां उसी तेलों से आती हैं जो तेल के अंग्रेजों ने आकर उसको इजाजत किया है। लेकिन नेचुरल के हिसाब से घी ऐसी चीज है कि इंसान के जिस्म के अंदर ताकत बनती है और उसकी वजह से बहुत सारी यानी फायदे हैं। खजूर, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। और इसी तरह गोश्त, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, ये चीजें अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है। तो अब ये सारी चीजें रखी हुई थी, तो उनके हवारियीन ने कहा कि हजरत बिस्मिल्लाह करो आप। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसको हाथ नहीं लगाता, मैं इसको नहीं खाता। तो हवारियीन ने कहा कि क्यों? इसलिए कि जिन लोगों ने सवाल किया था वही खाए। अब आपके हवारियीन डर गए कि हजरत ईसा नहीं खाए तो हम कहां से खाएंगे, तो वो भी पीछे हट गए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि मेरी उम्मत के अंदर जितने लंगड़े लूले, जितने अपाहिज, जितने बीमार हैं, जितने फकीर गरीब लोग हैं, वो आए और दस्तरखान से खाएं। तो जितने बीमार लोग थे वो आए, उस दस्तरखान से खाना शुरू किए। 1300 लोग जो बीमार अपाहिज थे और फकीर और गरीब थे खाए। जो बीमार थे वो तंदुरुस्त हो गए, जो फकीर थे वो मालदार हो गए उस दस्तरखान के खाने से। और ये दस्तरखान 40 दिन तक उतरता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक शर्त लगा दी थी, देखो फ़इन्नी क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, मैं जरूर तुम पर दस्तरखान नाज़िल करूंगा, लेकिन फ़मन यकफ़ुर बाद मिनकुम, तुम में से कोई नाशुक्री करेगा उसके बाद। तो मेरे भाइयों, नाशुक्री का मतलब यह है आदमी के अंदर हिर्स, लालच, हवस के खाओ छोड़ लो, जमा के मत रखा करो। ये जमा के रखना ये आकर हिर्स और लालच की बुनियाद पर होता है। तो अब इन लोगों ने क्या किया, खाए भी और जमा के भी यानी उठाकर रखना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ये नाफरमानी की। तो इसीलिए मेरे भाइयों, आज जितनी कौम हमारी है ना, इतनी नाशुक्री बन चुकी है। अल्लाह की नेमतें, करोड़ों नेमतें खाते हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की आकर मौका भी नहीं मिलता। जाकर पूछो आप किसी भी आदमी से, क्या भाई कैसा व्यापार चल रहा होने, क्या भी नहीं, ढीला है व्यापार, अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज नहीं आता। अरे जो अल्लाह खाना खिला रहे हैं, आफियत से रखे हैं, बेहतरीन कपड़े पिला रहे हैं, बेहतरीन मकान दिए हुए हैं, उस अल्लाह की कम से कम एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल सकता आदमी। हमेशा आकर क्या है, नेगेटिव यानी बातें ही होती हैं, नए घर के अंदर ऐसा है वैसा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जिस हालत में अल्लाह ने मुझे रखा है वो अल्लाह का शुक्र है, ये लफ्ज निकाल नहीं सकता आदमी। तो इसीलिए मुसलमान इतने नाशुक्रे हैं, इतने नाशुक्रे हैं, अल्लाह की नेमतें खाते फिर भी नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको तंदुरुस्ती अता फरमाई फिर भी नाशुक्री कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को नाशुक्री पसंद नहीं है। अजाब उन लोगों पर आता है जो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह सजा उन लोगों को देते हैं जो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। तो मेरे भाई, उसके बाद यानी लोग उठाकर रखना शुरू कर दिए। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दस्तरखान बंद हो गया। अब ये 40 दिन तक आता रहा। और एक शर्त अल्लाह की ये थी, आगे अल्लाह ने वही नाजिल की कि रोजाना लोग खाते थे और पूरे लोग मिलकर खाते, उसके अंदर मछली का जितना हिस्सा था वही उतना ही बाकी रहता था, यानी कम नहीं होता था। जितनी तरकारियां थी उतनी ही रहती थी, जितना आसमान से उतना था उतना ही रहता था। तो उनके हवारियीन ने यह सवाल कर लिया कि यह खाना कहां का है, दुनिया का खाना है या आखिरत का खाना है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना दुनिया का खाना है ना आखिरत का खाना है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से तैयार करके तुम्हारे पास भेजा है।
तो बहरहाल मेरे भाइयों, दूसरी शर्त ये थी अल्लाह तबारक व तआला की कि ये खाने को सिर्फ फकीर गरीब लोग खाएं, मालदार ना खाएं। अब मालदारों के अंदर ये शक व शुबात पैदा हो गए, कई को ऐसा कानून लाया अल्लाह ने कि क्यों गरीब और फकीर लोगों को खाने की इजाजत दे रहा है और मालदारों को क्यों नहीं दे रहा है। तो अब खुद भी शक में मुब्तला हुए और दूसरों को भी शक में मुब्तला करना शुरू कर दिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तफसीरों के अंदर आता है कि इन लोगों ने, मालदार लोग भी आकर खाना शुरू कर दिए और इसी तरह बचा कर रखना भी शुरू कर दिए। अल्लाह की सख्त उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह की सख्त उन्होंने नाशुक्री की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या अजाब दिया मालूम? फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु, कि मैं उनको ऐसा अजाब दूंगा जो जहां वालों में किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा। उनके सूरत बंदर और खिंजीर बना दिए। रात में सोए हुए थे, जो बूढ़े लोग थे उनको अगर खिंजीर बना दिया गया, जो जवान थे उनको बंदर बना दिया गया। रात में अपने घरों के अंदर बीवियों के पास सोए, सुबह को उठा तो उनकी सूरत खिंजीर सी बन गई थी और उठकर गलियों के अंदर कचरा खाने लगे, गंदगी खाने लगे और यानी गंदगियों में फिरते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत ईसा के गोल फिरने लगे और आवाजें करने लगे। हज़रत ईसा ने एक एक का नाम लेकर पुकारते रहे और हज़रत ईसा की आंखों में आंसू जारी थे कि मैंने कहा था कि तुमको इस तरह काम नहीं करना चाहिए था, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना चाहिए था, अल्लाह ने तुम्हें आकर क्या बंदर और खिंजीर बना दिया। तो हज़रत ईसा खूब रोए। तो इसलिए मेरे भाइयों, यानी उनकी उम्मत के 330 पर 3 आदमियों को खिंजीर और बंदर बना दिया गया था और ये 3 दिन तक जिंदा रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो इस उम्मत के अंदर तो बंदर और खिंजीर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अज़ाबात और ऐसी सजाएं देते हैं, उसको खुद पता नहीं चलता है कि ये मुझे क्यों हो रहा है, ये मुसीबतें मुझे क्यों आ रही हैं, ये हालात मुझ पर क्यों आ रहे हैं। उसी की नाफरमानी और गुनाहों की वजह से उसके ऊपर हालात आते हैं और बंदों के अंदर, लोगों के अंदर ये शऊर और एहसास खत्म हो गया कि मेरे गुनाहों की वजह से मुझे मुसीबत आई है, अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से मुझ पर मुसीबत आई। ये नहीं कौन की क्या की कर दिया, क्या की ये हो गया, ये चक्करों में लोग पड़ गए हैं। अपने गुनाहों से तौबा करना, अल्लाह से रुजू होना, अल्लाह के सामने रोना, अपनी मुसीबतों से अल्लाह से पनाह मांगना, ये अल्लाह उम्मत के अंदर खत्म हो चुका है। उम्मत ने मखलूक के पीछे भागा, अल्लाह ने मखलूक के हवाले कर दिया। अगर ये उम्मत खालिक के पीछे आती, खालिक के सामने अपना सर रखकर मांगती, अल्लाह के सामने अपना हाथ फैला कर मांगती, अल्लाह हर एक मुसीबत को खत्म फरमा देते। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया और ये 3 दिन तक जिंदा रहे और 3 दिन के बाद सारे के सारे मर चुके थे। और ये अजाब इसी तरह हज़रत बनी इसराइल पर नाजिल हुआ था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में, कि वही समंदर के किनारे पर जिसे रेड सी कहते हैं, ये कौम रहती थी। अल्लाह ने उनको मछली पकड़ने से, हफ्ते के दिन मछली पकड़ने से अगर मना किया था, ये लोग दूसरा आइडिया बनाए, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश किए, तो अल्लाह ने उनको भी इसी तरह बंदर और खिंजीर बना दिया था। तो इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब हवारियीन ने कहा था कि आप खाएं, यानी दस्तरखान का सवाल किया था, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोका कि देखो ये अल्लाह की निशानी होती है। कौम समूद के लोगों ने भी यानी अपने पैगंबर से सालिह अलैहिस्सलाम से अल्लाह की निशानी मांगी थी। जब अल्लाह ने उनको निशानी अता फरमाई, यानी ओढ़नी अता फरमाई, पत्थर से ओढ़नी बनाकर आकर उनको दिखा दिया, तो उन लोगों ने उस ओढ़नी को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ने उन सब पर ऐसा खतरनाक अजाब लाया। तो हज़रत ईसा ने रोका कि देखो जिस चीज का तुम मुतालबा कर रहे हो, ये अल्लाह की निशानी है। अगर तुम अल्लाह की निशानी में कोई गड़बड़ करोगे कि इस उम्मत पर भी अजाब आ सकता है। तो चुनांचे उन्होंने गड़बड़ किया तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाजिल कर दिया। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह की सजा नजर नहीं आती लेकिन ऐसा काम कर जाती है जिसकी बुनियाद पर लोग यानी हैरान के हैरान रह जाते हैं। इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह की लाठी से डरना चाहिए,
اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو، گنہگار کو ڈھیل دیتے ہیں، جاؤ بیٹا کہاں تک جاتا ہے، جاؤ کتنے دور جاتا کہ جاؤ، کتنا گناہ کرتا کہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو کوئی آدمی دنیا کے اندر اس کو بچا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ نے آ کر کیا ہے ان کو یعنی عذاب نازل کیا، 40 دن تک یہ دسترخوان آتا رہا، 40 دن کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس دسترخوان کو بنایا تھا، اور نہ دنیا کا تھا نہ آخرت کا تھا، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ چیزیں تیار کر کے یعنی دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے یعنی چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ عام طور پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں جس کا قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ ایسے گناہ کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔